Good morning, children. In the previous class, we completed lesson number 3, and I already sent a PDF file of lesson number 3, and I hope all you did and you wrote in your CW. Okay, lesson number 3 na complete ಮಾಡಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಿದ್ದೀನಿ. ಬುಕ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಬರಬೇಕಾದಲ್ಲ, ಸೊ ಅವಾಗ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬುಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಹಿಯರ್ we will move to next lesson. So in that lesson here इधर क्या है कि यहाँ बीरबल की खिचड़ी. तो बीरबल यहाँ क्या है कि यहाँ एक कवि है, और इतना है कवि, इतना ही नहीं, कवि मतलब कौन सा कवि, जो आस्थान में रहता है ना, जो राजा महाराजा के आस्थान में रहता है ना, एक हास्यकार है, हास्य कवि है. ओके, तो और क्या है कि बहुत चतुरता से अपना काम करता है. उनको कोई भी कुछ भी काम देने दो, yes, if he will give you anything work, he will do very clearly or very intelligently, because he was very clever. ಏನೋ ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಸನ್ ದೇ ಗೇವ್ ಹಿಯರ್ ಒನ್ ಲೆಸನ್, that is बीरबल की खिचड़ी. Okay, so what he did, why he did, so we'll see. All of you open your page, textbook page number 18. Okay, पहला पाठ का परिचय. प्रस्तुत चित्रकथा में बीरबल द्वारा चतुराई और बुद्धिमानी से अकबर को अपनी भूल का एहसास करवाने का रोचक ढंग से वर्णन किया गया है. यहाँ क्या हुआ है कि यहाँ अकबर और बीरबल, अकबर जो है क्या है कि राजा है, वहाँ राजा को अपना चतुरता से, अपना बुद्धि शक्ति से क्या करता है कि वहाँ उनको बुद्धि शक्ति का जो कुछ भी भूल ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪು, ಏನೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ನಾವು ಅಥವಾ ಏನೋ ಶಿಕ್ಷೆ ಇದ್ರೂ ಅದು ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೋಬಹುದು, ಅಥವಾ ನಾವು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಬಹುದು. सो यहाँ क्या करता है कि अपना चतुरता से, अपना बुद्धि शक्ति से क्या करता है कि यहाँ राजा को कुछ सीख देता है. ओके, ಒಂದೇನೋ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ಏನು ಶಿಕ್ಷಣ ಕಲಿಸ್ತಾನೆ, ನಾವು ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಹೆಂಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ओके, सी हियर, एक बार अकबर ने कठिन चुनौती का चुनौती का ऐलान करते हुए कहा कि जो व्यक्ति रात भर नदी के ठंडे पानी में गर्दन तक डूबकर खड़ा रहेगा, उसे सोने की मोहर इनाम में दी जाएगी. सर्दियों में ऐसा कर पाने की चुनौती कठिन थी, फिर भी एक गरीब पिता अपनी बेटी के विवाह के लिए धन जोड़ने की इच्छा से इस कठिन चुनौती के लिए तैयार हो गया और राजा के सामने उपस्थित हो गया. यहाँ क्या हुआ था कि जो राजा है ना अकबर, there was one king, his name is Akbar, and here one of the minister, here who बीरबल is one of the minister. Okay, minister ಅಂದ್ರೆ ಮಂತ್ರಿ, ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಮಂತ್ರಿ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲೊಂದು ಒಬ್ಬ ಹಾಸ್ಯಗಾರ. ಸೊ ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ಇವಾಗ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಅಥವಾ ಸಂಭಾಷಣೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ एक बार अकबर ने कठिन चुनौती का ऐलान करते हुए कहा कि जो व्यक्ति रात भर नदी के ठंडे पानी में गर्दन तक डूबकर खड़ा रहेगा, उसे सोने की मोहर क्या इनाम में दी जाएगी. सो ಏನಾಯಿತು, सो आप लोग कोई भी, यहाँ एक चुनौती मतलब चैलेंज, यहाँ एक चैलेंज दिया गया है कि आप कोई भी एक दिन से रात तक, ओके, रात भर क्या करेंगे कि आप कोई भी एक ठंडे पानी पर डूबकर मुड़ेगी, ओके, डूबकर आपको एक दिन भर रहोगे, तो आपको उस चुनौती का क्या हम विजयी मानकर आपको क्या देंगे कि सोने का इनाम देंगे. सोने मीन्स गोल्ड. ओके, इफ यू विल स्टे one night, day and night, okay, one night at that cold water, that is related to pond or river or sea and anywhere, okay, but you have to stay one full whole day in that place. So then only you will win that challenge and you will got a gold coins or gold prize, two of that winning amount or winning prize or the first prize ಅಥವಾ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗೋಲ್ಡ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು.
ಹೌದಾ. ಒಂದಿನ ಪೂರ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟೇ ಇನ್ ದಟ್ ವಾಟರ್, ಆ ನೀರಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ಬೇಕು ನೀವು ಮುಳುಗಿಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ अकबर ने कठिन चुनौती, चुनौती मीन्स चैलेंज, यहाँ क्या दिया था कि चुनौती दिया था, चैलेंज क्या दिया था कि यहाँ रात भर, एक दिन रात भर क्या करना था कि ठंडे पानी पर रहना था, तभी उनको क्या होता था कि विजयी मानकर सोना दे देते। सर्दियों में ऐसा कर पाने की चुनौती कठिन थी। सर्दियों में क्या हुआ था कि जो सर्दी मतलब इन द ठंडे टाइम, ओके, इन द समर वेकेशन, विंटर वेकेशन और समर विंटर ರೇನಿ ಸೀಸನ್ ಬರ್ತದಲ್ವಾ, ಇನ್ ದಟ್ ವಿಂಟರ್, ವಿಂಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು, ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲೇ. ನಾವು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ತಣ್ಣೀರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆಗುತ್ತಾ, ತಣ್ಣೀರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ, ಇಲ್ಲ, ವಿ ವಿಲ್ ಫೀಲ್ cold, but in the time of winter they have to stay one day at that water. It is little bit impossible. ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಳಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಒಂದು ದಿನ ಪೂರ್ತಿ ಇರಬೇಕು, ಏನಾದರೂ ಹುಷಾರಿಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಸೊ ಚಳಿ ತಡ್ಕೊಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಡಿಫಿಟ್ ಆದರೆ, ಸೊ ಆ ಥರ ಏನು ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕೆಲವೊಬ್ರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. फिर भी एक गरीब पिता अपनी बेटी के विवाह के लिए धन जोड़ने की इच्छा से इस कठिन चुनौती के लिए तैयार हो गया. फिर भी यहाँ चुनौती क्या था कि एक दिन ठंडे पानी में रहना है, वहाँ भी क्या कि यहाँ सर्दियों के टाइम में, ओके, तो यहाँ कोई लोग आगे नहीं आए, उस चुनौती के लिए कोई भी नहीं आगे आए. परंतु एक क्या हुआ कि गरीब पिता अपने बेटी का विवाह, विवाह ಅಂದ್ರೆ ಮದುವೆ, ओके, विवाह करना चाहता था. तो गरीब पिता के पास पैसे या सोने का क्या था कि कम उपलब्ध था. तो यहाँ क्या किया कि उन्होंने जो मैं उस क्या कि वहाँ मैंने यहाँ चुनौती जीत जाने पर मुझे क्या मिलेगा, सोने का मोहरे मिलेगा, ओके, तब मैं क्या करूँगी कि उस पैसे से या उस सोने से मेरा बेटी का शादी कर सकूँगी. तो इसलिए वहाँ क्या करता है कि वहाँ एक गरीब आदमी अपने बेटी के शादी के लिए यहाँ चुनौती को क्या करता है कि आज्ञा देता है, ಅಥವಾ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಒಪ್ಕೋತಾರೆ, ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟೇ ಇನ್ ದಟ್ ಒನ್ ಡೇ ಎಟ್ ವಾಟರ್, ಬಟ್ ನೋ ಒನ್ ಕೇಮ್ to attend or to lead that challenge. But there was one poor man, he wanted to marriage her daughter, because he don't have a money or gold. Then what he did, he accepted that challenge, I will do this challenge, because he wanted money for her daughter marriage. So उस चुनौती के लिए तैयार हो गया और राजा के सामने उपस्थित हो गया, और क्या करता है कि मैं चुनौती लड़ूंगा और मुझे चुनौती लड़ने के लिए आपका क्या चाहिए कि अवकाश देना चाहिए. ऐसा कहकर क्या करता है कि राजा के सामने आ जाता है. Yes, he came into the with in front of राजा or king Akbar, because he only announced that challenge. For that purpose, if they wanted to take a part in that challenge, means they have to come in front of or in the court of king only. So that poor people or that poor father, he came in front of Raja. After that what happened? Maharaja, मैं इस चुनौती के लिए तैयार हूँ. Yes, यहाँ क्या कहता है कि वहाँ गरीब पिता क्या कहता है कि महाराजा मैं इस चुनौती के लिए तैयार हूँ, ನಾನು ಈ ಚುನೌತಿ ಅಥವಾ ಈ ಚಾಲೆಂಜನ್ನು ನಾನು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ठीक है, यदि तुम इस चुनौती को पूरा करने में सफल हुए तो तुम्हें इनाम अवश्य दिया जाएगा. और राजा क्या कहता है कि ठीक है, क्योंकि मैंने चुनौती रखा है तो मैंने गरीब या श्रीमंत ऐसा कुछ नहीं रखा है, आप कोई भी आ सकते हैं, आप कोई भी उसमें भाग ले सकते हैं. तो राजा क्या करते हैं कि ओके ठीक है कहकर उनको क्या देते हैं कि अवकाश देते हैं, और कहते हैं कि आप इस चुनौती में सफल मीन्स विजयी हो जाएंगे तो मैं आपको क्या करूँगी कि सोने का जो मोहर मैंने रखा है ना पुरस्कार के रूप में, वहाँ मैं आपको दूंगी, ऐसा कहता है. रात भर यदि नदी के ठंडे पानी में खड़े रहकर मैं महाराजा की शर्त पूरी कर सका तो बेटी का विवाह आराम से कर सकूंगा. ओके, तो क्या होता है कि महाराजा भी उनको क्या कहता है कि वहाँ चुनौती लड़ने के लिए अवकाश देता है.
तो यहाँ बूढ़े पिता क्या करता है, वहाँ पिता ठीक है मुझे भी क्या करना है, अपनी बेटी की शादी करना है। यस, ही वांटेड टू मैरिज हर डॉटर। फॉर दैट पर्पज ही अग्रीड दैट द चैलेंज एंड he went into the challenge. So after that what happened, he is thinking, if in one day or night full of night, if I stay in that water, in the cold water, then if I will got a money or a gold, then I will do my daughter marriage very easily. Like that type he is thinking. कहा क्या कहता है कि जब मुझे रात भर ठंडे पानी में रहने के बाद जो मुझे सोना मिल जाएगा तो मेरा बेटी का क्या हो जाएगा, शादी अच्छे तरह से हो जाएगा। ऐसा ही क्या करता है, वहाँ सोचता है। अगले दिन दरबार में, महाराज मैं चुनौती पूरी कर ली है। महाराज महल के झरोख में जलते दीपक देखकर, तो क्या होता है कि अगला दिन आता है। अगला दिन में क्या होता है कि यहाँ महाराज जी मैंने चुनौती पूरी कर ली है। वहाँ क्या होता है कि रात भर उस पानी में खड़े होकर अगले दिन क्या होता है कि राजा का आस्थान में आ जाता है वहाँ वो गरीब आदमी, और क्या कहता है कि महाराज जी मैंने रात भर क्या किया है कि ठंडी पानी में खड़े होकर मैंने वहाँ मेरा क्या आपने चुनौती दिया था ना, वहाँ चुनौती को क्या किया है कि पूरा कर लिया है, ऐसा कहता है। तुम रात भर ठंडे पानी में कैसे खड़े रह पाए? फिर क्या करता है कि महाराजा उनको पूछता है, रात भर आप ठंडे पानी में कैसे रह पाए? क्योंकि अब सर्दियों का समय है। ओके, देयर इज अ टाइम ऑफ व्हाट, विंटर। हाउ वी कैन स्टैंड फॉर होल वन नाइट इन दैट कोल्ड वाटर? So that king also he got little bit confusion and he is asking to that poor person, so how you can how you can stand in that one whole day, whole night, because day means we will feel hotness, ಸ್ವಲ್ಪ ಸೂರ್ಯ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಳಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ದ ನೈಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದ್ರು ಬಹಳ ಚಳಿ ಆಗುತ್ತೆ. and he stood one day full, one night full ನಿಂತಿರ್ತಿಯಲ್ಲ, ಹೆಂಗೆ ನಿಂತಿರ್ತೀಯ ನೀನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ. महाराज महल के झरोखे में जलने दीपक लेकर, यहाँ क्या कहता है कि महाराज मैं कैसे रह पा, मतलब जो महल मीन्स पैलेस और अरमने ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು, महल मीन्स पैलेस, जो झरोखों मतलब विंडोज और होल्स। ओके, क्या क्या था कि महाराज में जो महल का क्या था कि झरोखे था ना, तो उसके आगे या उसके पीछे क्या था कि जलते हुए दीपक से मैंने क्या किया कि वहाँ जलते हुए दीपक को देखते ही मैंने एक दिन निकाल दिया। Means so what happened, how you possible to stand one day like that, king asked, no? In that time he told, because in the palace there is a hole or a window also a hole in the, I saw that what burning lamp in the inside the palace ಒಳಗಡೆ ಬೆಂಕಿ ಉರಿತಿತ್ತು. ಬೆಂಕಿ ಅಂದ್ರೆ ದೀಪ. ಓಕೆ, ಯಾವ ದೀಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನು ಲ್ಯಾಂಪ್ ಹಚ್ಚಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಥರ, ಅಥವಾ ದೀಪ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ದೀಪ ಉರಿತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್, ದೀಪ ಉರಿತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ದೀವಿಗೆ ಅಥವಾ ದೀಪ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಂಪ್, ಆ ದೀಪ ಉರಿತಾ ಇರೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಒನ್ ನೈಟನ್ನು ಕಳೆದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು. ओके, महल के दीपक की गर्मी से तुम रात भर पानी में खड़े रहे तो तुम इनाम के हकदार नहीं। और राजा क्या कहता है, इसका मतलब क्या है कि रात भर तुमने जो दीपक, जो ज्वाला है ना, उसके दीपक से अपना शरीर को गर्मी करके आपने पानी में खड़ा है, तो इसका मतलब क्या होता है कि आप इस इनाम का या आप इस चुनौती का ವಿಜಯಶಾಲಿ नहीं हो। ಏನು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ನೀನು ಆ ದೀಪ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ಅಂದರೆ ದೀಪದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ತಡ್ಕೊಂಡು ನೀರಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀಯಾ, ಹಂಗಂದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರೈಸನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಹಕ್ಕದಾರಿಲ್ಲ, ನೀನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನೀನು ಏಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಹೌದಾ। आफ्टर दैट सोचा था बेटी का विवाह अब आराम से हो जाएगा, पर अब कैसा होगा। और फिर से यहाँ सोचता है, क्यों वहाँ आदमी क्यों आया था,
क्योंकि अपना बेटी का शादी करना चाहता था। यस, फॉर दैट पर्पज ही केम बिकॉज ही वांटेड टू मैरी to her daughter. But what happened here? That king is refusing to give a prize because he took that temperature of that lamp and you stayed one night full. So for that purpose you didn't feel cold also. So that was I will not give any prize of gold to you. Like that he told. Then little bit that person he got little bit what? ಸ್ಯಾಡ್ ಹೌದಲ್ಲ. ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಪೂರ್ತಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅವನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಖುಷಿಯಿಂದ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಬಟ್ ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ನೀನು ಆ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಅಥವಾ ಆ ಶಾಖದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. कुछ तो सोचना ही पड़ेगा. तब क्या होता है कि उस स्थान पर कौन आता है कि बीरबल आता है और क्या कहता है कि ये सब घटना के बारे में उनको पता चलता है. तभी क्या होता है कि आसन के अंदर आएगा तो क्या आता है तो यहाँ गरीब आदमी राजा से बात करते हुए सुनकर क्या करता है कि मुझे कुछ तो सोचना ही पड़ेगा, ನಾನೇನಾದರೂ ಒಂದು ಉಪಾಯ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಪಾಪ ಮೋಸ ಆದಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ he stood one night full in that cold water and now king is refusing to give that prize. So I have to make one idea. ಓಕೆ, ನಾನೇನಾದರೂ ಒಂದು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಅವನಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು बीरबल he is thinking. अगले ही दिन अकबर बीरबल शिकार खेलने गए. तो क्या हुआ कि ऐसा उस दिन तो चला गया, दूसरा दिन उसका अगले दिन क्या होता है कि अकबर और बीरबल दोनों शिकार करने के लिए कहाँ जाते हैं कि जंगल में जाते हैं. ओके, शिकार में हंटिंग. बीरबल जोरों की भूख लगी है. राजा क्या कहता है कि बीरबल को, अकबर क्या कहता है बीरबल को, बीरबल मुझे बहुत भूख लगी है. भूख में हंग्री. यस, आई एम फीलिंग वेरी हंग्री. सो इन दैट टाइम महाराजा अभी खिचड़ी तैयार करता हूँ. ओके, तो यहाँ क्या कहता है कि बीरबल मैं यहाँ क्या करूँगी कि खिचड़ी तैयार करूँगी. खिचड़ी मतलब जो हम क्या करते हैं कि धान्य डालकर राइस. ओके, राइस या दाल चावल सब डालकर हम क्या करते हैं कि एक खिचड़ी बनाते हैं. खिचड़ी इट इज नथिंग बट देयर इज अ वैरायटी टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स. वी विल पुट वेजिटेबल्स एंड पल्सेस एंड राइस. ओके, mingle of that we will made one special dish. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಿಚಡಿ. ಆ ಕಿಚಡಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಈಗ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. उसके बाद क्या होता है, बीरबल इतनी ऊपर बंदी हांडी को आग की गर्मी कैसे मिलेगा. महाराज धैर्य रखिए, खिचड़ी पक जाएगा. तो यहाँ क्या होता है कि बीरबल को महाराज आकर बोलता है कि मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए. तो बीरबल क्या करता है, जरूर महाराज आपको मैं खिचड़ी बनाकर दूंगा ऐसा कहकर जो आग जलाता है और जो मटके में क्या करता है कि सब दाना और चावल डालकर मटके क्या करता है कि आग से बहुत ऊपर बांधता है. यहाँ आग है मतलब इधर आग है, तो मटके को यहाँ क्या करता है कि इतने ऊपर मटकी को बांध लेता है. रस्सी लेकर ऊपर क्या करता है कि मटकी को बांध लेता है. ओके, मतलब इतने नीचे आग है और मटकी कहाँ है कि बहुत ऊपर है. ओके, और क्या करता है कि महाराज देखता है और बोलता है बीरबल इतनी ऊपर क्यों आपने मटकी या उस सामान को इतने ऊपर क्यों बांधे हो, इष्ट ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿದೀಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೆಂಕಿ ಇರೋದು ಇಷ್ಟು ಕೆಳಗೆ, ಹೌದಾ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಯಾಕೆ ಕಟ್ಟಿದೀಯಾ, ಅದ್ರ ಶಾಖ ಅದಕ್ಕೆ ತಾಗುತ್ತಾ, ಅದು ಬೆಂಕಿ ತಾಗಿ ಅದು ಬೆಳೆ ಬೇಯುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಅನ್ನ ಬೇಯುತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. हांडी को इतने आग से, आग मीन्स फायर. हांडी को क्या मिल जाएगा कि इतना ऊपर है तो आग उसे लग जाएगा और खाना पक जाएगा. ऐसा पूछने पर महाराज धैर्य रखिए, खिचड़ी पक जाएगी. वहाँ क्या कर रहा है महाराज, आप धैर्य रखिए, क्योंकि मैं इतना ऊपर बंधा हूँ, मतलब खिचड़ी जरूर पकेगा ऐसा कहता है. बिकॉज he have one idea in his mind who Birbal have about that Akbar don't know.
For that purpose, he kept he tied upside that pot. He kept all the pulses and rices in that pot and he tied upside, very upside, because this what fire will not touch this pot. Okay. So that purpose he is asking. So if you are tying so height means how can it will reach a fire and how can it will all boil pulses and all? It is possible. Then Birbal is telling yes you can what आपको क्या करना है कि धैर्य रखना है, be a patient, take a strength, because it will what it will boil, afterwards it will boil and we can eat, like that he is telling it. He is what giving a consolation to consolation to Akbar. ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅವನು, ಏನು ಹೆದರಬೇಡ್ರಿ ನೀವು, ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಧೈರ್ಯ ತಗೋರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಆ ಪಾಟ್ ಅನ್ನ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಓಕೆನಾ, ಯಾಕೆ ಪಾಟ್ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಏನಾಯ್ತು, ಕಿಚಡಿ ಆಯ್ತಾ ಆಗಿಲ್ವಾ? ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ರೀಡ್ ಒನ್ಸ್ लेसन नंबर 4 बीरबल की खिचड़ी के बीरबल फूड खिचड़ी। एक बार अकबर ने कठिन चुनौती का ऐलान करते हुए कहा कि जो व्यक्ति रात भर नदी के ठंडे पानी में गर्दन तक डूबकर खड़ा रहेगा उसे सोने की मोहरें इनाम में दी जाएंगी। सर्दियों में ऐसा कर पाने की चुनौती कठिन थी, फिर भी एक गरीब पिता अपने बेटी के विवाह के लिए धन जोड़ने की इच्छा से इस कठिन चुनौती के लिए तैयार हो गया और राजा के सामने उपस्थित हुआ। महाराज जी, इस चुनौती के लिए मैं तैयार हूँ। ठीक है, यदि तुम इस चुनौती को पूरा करने में सफल हुए तो तुम्हें इनाम अवश्य दिया जाएगा। रात भर यदि नदी के ठंडे पानी में खड़े रहकर मैं महाराज की शर्त पूरी कर सका तो बेटी का विवाह आराम से कर सकूंगा। अगले दिन दरबार में, महाराज मैंने चुनौती पूरी कर ली है, तुम रात भर ठंडे पानी में कैसे खड़े रह पाए? महाराज, महल के झरोखों में जलते दीपक देखकर, महल के दीपक की गर्मी से तुम रात भर पानी में खड़े रहे तो तुम इनाम के हकदार नहीं हो। सोचा था बेटी का विवाह अब आराम से हो जाएगा, पर अब कैसा होगा, कुछ तो सोचना पड़ेगा। अगले ही दिन अकबर बीरबल शिकार खेलने गए। बीरबल, जोरों की भूख लगी है, महाराज अभी खिचड़ी तैयार करता हूँ। बीरबल, इतनी ऊपर बंदी हांडी को आग की गर्मी कैसे मिलेगी? महाराज धैर्य रखिए, खिचड़ी पक जाएगी। सो here I will conclude. The next I will give tell in the next class. And for your homework, okay, you have to write a meanings. I will give you meaning. Jarak fire hakdar. So deserving. How many? 5. Okay, 5 meanings. Then handi, okay, pipkin or pot, pipkin, okay. Inam, prize. Read lesson 4. Homework, then write. Okay, see here. चुनौती, challenge, महल, पैलेस, झरोखो, विंडोज और होल, आग, फायर, then हकदार, deserving, handi, pipkin, then inam, prize. Okay, you have to write these all meanings in your HW book. How many times you will write? 5 times, and you have to read the lesson also. Lesson ಓದ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತೆ 5 times
ಸೆವೆನ್ ಮೀನಿಂಗ್ಸನ್ನು 5 ಟೈಮ್ ಓದ್ಕೊಂಡು ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಉಳಿದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.